ہم سنی بریلی والے ہیں، ہم سنی بریلی والے ہیں، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ لگانے والے ہیں، ہم سنی بریلی، ہم سنی بریلی والے ہیں، ہم سنی۔ میں اپنے تمام سنی حنفی بریلوی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، میں ایک آڈیو سناؤں گا اور ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک ایسے شخص کا آڈیو سناؤں گا جو دیوبندی رہ چکا ہے، دیوبندی مدرسے میں پڑھ چکا ہے اور وہ ابھی 100 دیوبندیوں کے بیچ رہ رہا ہے، مگر جب حق سمجھ میں آیا، انہوں نے تحقیق کیا تو ان کو ساری باتیں سمجھ میں آیا اور وہ ابھی مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہے۔ آپ ان کی آڈیو سنیں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی بھائی دھوکے سے ایسے لوگ میں پڑے ہے تو لہٰذا اللہ کا واسطہ آپ لوگ تحقیق کرے اور حق سمجھے، اور یہی آپ کو کام آئے گا۔ یقین جانے مسلک اعلیٰ حضرت یہی حق ہے اور یہی قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس آڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہیلو، ہاں، 7 تبلیغی جماعت کا بانی بول رہے ہو کیا؟ بولیے کیا کہیے آپ کو؟ جو دلی مرکز میں اس ٹائم جو ہے موجود ہے؟ نہیں، اور کون سا ساتھ ہے؟ دوسرا ساتھ ہے۔ دوسرا ساتھ ہے۔ ہوں، کیا کہہ رہے ہو کہ اگر فون نہیں اٹھایا تو برا ہو جائے گا، اور جانے کیا ہو جائے گا، کیا کر لے گا تو؟ آپ نے الٹا سیدھا کیوں بولا ہم کو؟ بولے میں نے کیا بول دیا تمہیں؟ آپ نے الٹی بدتمیزی سے کیوں بات کی ہے پرسوں کس سے؟ ہمارے سے؟ کس سے؟ ہم سے۔ کیا تجھ سے بدتمیزی سے بات کر لی بھائی؟ آپ نے شیطان کو کافر، آپ نے ایسا بولا۔ آپ کو میں نے بولا تیرے اپنی ابھی میں نے تیرے واٹس ایپ پہ دیکھا ہے کہ دلی مرکز کا جو مرکٹ ہے وہ اس کو جو ہوئی وہ تیرے واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو میں نے فوٹو کھینچ کے لگا رکھا آپ نے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی نہیں، میں مطلب یہ نہیں وہ نہیں، اس دن میری تجھ سے بات ہوئی تھی کچھ۔ ہاں، کیا ہوئی بتاؤ، کیا کہا میں نے آپ کو؟ تو اپنے جو یہ دیوبند کے جو 4 مولوی ہیں کون ان سے؟ کو مسلمان مانتے ہو کافر مانتے ہو؟ کون سے؟ تھانوی، ننوتوی یا میٹھوی، گنگوہی؟ اچھا، ہاں، کیا مانتے ہو ان کو؟ میرے بزرگان دین ہیں۔ اچھا، تمہارے بزرگان دین ہے؟ ہاں، بزرگان بد دین ہیں، بزرگان دین نہیں ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، میں ثبوت پیش کروں؟ ہاں کرو۔ یہ بتائیے کہ جو رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھے اور رسول اللہ کی شان میں توہین کرے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بالکل مسلمان کیوں نہیں ہونے کا، وہ مسلمان ہوگا؟ تھارے جیسا، نہیں، تمہارے جو جیسا۔ حضور کی شان میں توہین کرے گا ہاں، تم تو بھی کر رہے نا، مسلمان ہے؟ تم کرے گا، تم کر رہے ہو ان کے سامنے دماغ سے پیدل ہے کیا؟ ارے تم کر رہے ہو دماغ سے پیدل ہے کیا؟ ہاں، تم کہہ رہے ہیں نا اپنے آپ کو مسلمان، تو تم ہے اپنی میں تو نظروں میں الحمدللہ مسلمان ہی ہوں، مومن تو ہوں پھر الحمدللہ۔ ایک اور اپنی کال آ نظروں رہا میں۔ ہے، ایک منٹ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم نہیں حضرت، السلام علیکم۔ ان پہ تو سلام ہی نہیں کرنا تھا۔ ارے السلام علیکم کہا حضرت، آپ کو سنا اچھا چلو ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ ہاں بولو۔ حضرت میں آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ہاں بولیے۔ حضرت میرے پاس ایک پوسٹ آئی تھی ابھی نا ایک، اچھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی۔ اور میں پوچھنا چاہ رہا صحیح کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں اس طرح؟ بالکل الحمدللہ، نگاہ ولی جس پر پڑ جاتی ہے الحمدللہ صحیح سے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور غوث اعظم کا واقعہ نہیں سنا؟ جی میں نے سنا، میں اس لیے پتہ کر رہا ہوں، میں نے کہا ہاں جانکاری ہوگی۔ جی جی جی، تو الحمدللہ غوث اعظم کی نگاہ نے جانے کتنے لوگوں کو جو ہے ولی بنا دیا ہے۔ جی 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 جی۔ اور میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تھے تو سب جو ہے مشرک تھے، غیر مسلم تھے۔ الحمدللہ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، جو ہے ان کی باتوں کو سن کر ایمان لے آتے تھے، جی جی سمجھے؟
जी जी बेशक, हाँ ठीक है सर, ठीक। ठीक है हजरत। एक देवबंदी है लाइन पर, रुको जी सुनते रहो। तो हजरत शफी भाई आप ही हैं वो जो मतलब देवबंदी से बरेलवी बने थे? जी जी सर। माशाल्लाह। अच्छा वो जरा मैं यहाँ दोबारा से पूछना चाहूंगा कि आपको एक वक्त मैंने समझाया था, मेरी बात हुई थी आपसे, तो आप नहीं माने, मगर आप खुद बखुद क्यों माने, जरा वो थोड़ी सी वजाहत कर दें। अच्छा वजाहत जैसे हजरत ऐसा हुआ हाँ कि मैं शुरू पढ़ाई मेरी देवबंदी से हुई जी इब्तिदाई। जी मैं की मस्जिद इमाम था मस्जिद में। जी हमारे यहाँ गुजर बस्ती इलाके में बहुत मस्जिद है, काफी मस्जिद है देवबंदियों की। जी तो मस्जिद अली है एक, जी तो वहाँ पर इमाम था। हेलो। जी हजरत सुन रहा हूँ। हाँ तो मैं वहाँ पर इमाम था। जी तो फज़ाइल अमाल की आवाज कट गई हजरत आपकी, आवाज नेटवर्क की प्रॉब्लम से। जी दोबारा बोलें। मस्जिदों में फज़ाइल अमाल की तालीम होती है। जी हाँ होती है। हाँ इनकी जमात वाले लोग करते हैं ना। जी 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 तो मैं वो किताब पढ़ रहा था तालीम में। जी तो पढ़ते पढ़ते मेरे सामने एक हदीस आई। हेलो। जी हजरत। हाँ हदीस आई कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से नकल किया गया है हाँ कि अगर अल्लाह जल्ल शानु के इल्म में ये बात होती हाँ कि मालदारों की ज़कात फकीरों को काफी ना होगी, जी तो अल्लाह ताला ज़कात के अलावा कोई और चीज तजवीज फरमाते जो इनको काफी हो जाती। जी बस अब जो फकीर के हैं वो मालदारों की वजह से ज़कात नहीं देते। जी तो इस हदीस को मैं 3 मरतबा पढ़ा, जी मुझे इसमें शक व शुबा पैदा हुआ। जी तो मैं कहीं देवबंद के उलमा के पास भी गया हूँ जो हमारे इलाके के जिम्मेदार उलमा है। जी तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि किताब को बंद करके रख दो। अच्छा मैंने कहा अगर मुझे मसला समझाओ कि अल्लाह के इल्म में बात होती ना होती, क्या मतलब इसका। जी 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 तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम इस किताब को बंद कर दो, ये मसला हम नहीं बता सकते। जी जो जिसमें लिखी है वो जाने, उसका रब जाने। हाँ तो मैंने कहा फिर तो ऐसा है जब आप तबलीग का काम करते हो तो तबलीग वो लोग जाने, तुम्हें क्या मतलब किसी को नमाज पढ़ने कहने से नमाज पढ़ो। जी 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 सही बात है। तुम क्यों किसी को दिन की दावत देते हो। जी तो उन्होंने कहा नहीं ये बात तुम्हारी सही है। हाँ खैर वो मसला चला काफी हद तक, बड़े बड़े उलमा पास वो मसला कर उनके पास। जी तो मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। जी तो हजरत मैंने यहाँ से ये जाना कि उस किताब में साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह को इल्म नहीं है। जी 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 बिल्कुल वैसा ये कहते हैं। नहीं जिसके अकीदे में ये हो जी कि अल्लाह को इल्म नहीं, तो मैं तो उस कौम को हक पर नहीं समझता। जी और बाकी ये है कि और भी बहुत सारे इनके फतुहात पे लिखे हुए शबीखान वगैरह के मैंने वो भी पढ़े, जी लेकिन मैंने ज्यादा गौर नहीं किया था। मैंने इस बात पे ज्यादा गौर किया। जी वो तो मेरे नबी की बात थी, जब नबी तो नबी है ना, खुदा को भी नहीं छोड़ा। जी जी इन्होंने खुदा को भी नहीं छोड़ा, और खुदा को भी माज़अल्लाह ये कहते हैं कि खुदा झूठ बोल सकता है, और जितने भी काम जो बंदे कर लेते हैं वो सब खुदा भी कर सकता है माज़अल्लाह। जी 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 हाँ बिल्कुल ये अकीदा है। तो ये एक देवबंदी मेरे साथ लाइन पर था मेरे। मेरी बात सुनो, आपकी मैं दोनों की बात सुनना, तुम दोनों मेरी बात सुनो। अच्छा बताओ। हमारी जो किताब है ना फज़ाइल अमाल, फज़ाइल सदका, बिस्ती ज़बर, हाँ इन किताबों के नाम आपने भी रख रखे हैं। नाम और रखने से कुछ नहीं होता। मार्केट में बिक्री में उल्टा सीधा लिख रखा है आपने। जी साहब जी 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 आपने उल्टा सीधा लिख रखा है उसमें। सुनो हाँ यही बात मैंने कहीं आके देवबंदियों ने कि हो सकता है तुमने किसी किताब में पढ़ा हो। हाँ मैंने कहा मैंने अभी इमाम था जी मैं अभी पढ़ कर आया हूँ। हाँ किताब है मैंने। हाँ। ये हजरत कहाँ से बोल रहे हैं? हजरत मैं बता रहा हूँ, मैं गुजर वैसे आप कहाँ किस जगह से बोल रहे हैं? जी नजीबाबाद जानते आप? नजीबाबाद? हाँ नजीबाबाद। तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ में 1 घंटे का फर्क है आने का, मैं आपके पास ही आ जाऊँ अभी? हाँ जी बिल्कुल आ जाओ, अभी आ सकते हैं। बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल अभी दिखाऊँ मैं आपको अभी। हाँ। फिलहाल आप कहाँ हो? और देखो तो तुम्हारे मुल्लाओं के सामने दिखाएंगे तुम्हारे मुल्ला। मैं बिल्कुल हाँ, सुनो जो है- हसन साहब जी मैंने चैलेंज किया हुआ है। मैंने कहा कोई इस बात को गलत साबित कर दे। आप फिलहाल कहाँ हो? फिलहाल मैं गुजर बस्ती में हूँ, बता रहा हूँ आपसे। गुजर बस्ती तो कई सारी है, कौन सी है? अच्छा बताओ कहाँ से बोल रहे हो आप, बताओ पहले मुझे। मैं कलियर शरीफ से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद है। साद?
ہاں میں سمجھا وہ خاص دیوبندی ہے جو مرکز چلاتا ہے. میں سمجھا آج تو مزہ آ گیا یار. میں گینڈی کھاتا ہوں, گینڈی کھاتا گجر بستی میں, گینڈی ہاں کھاتا. ہاں گنڈی کھاتا گجر بستی میں گیا ہوں وہاں بابو. کس کے پاس؟ وہاں مسجد میں نے نماز پڑھی ہے. وہاں کچھ تو بریلوی ہے, گجر کچھ دیوبندی ہے. ہاں اب سنو میرا گردوارے میں جو راستہ کے گردوارے میں سے اندر کوئی ہے نا راستہ. ہاں وہی اسی گجر بستی میں ہوں. سنو بات میری. ہاں تمہاری مسجد ہے وہیں. میرا نام محمد شفیع ہے. اچھا. اور پہلے میں دیوبندی تھا, میں بریلوی ہوں. اور کسی سے بھی پوچھ لینا. اب لوگ مجھے زیادہ تر اس بات سے جانتے ہیں کہ شفیع بریلوی ہو گیا. کسی سے پوچھنا کہ شفیع جو لڑکا بریلوی ہوا ہے کچھ 2 سال سے, ہمیں اس سے ملنا ہے. بلکہ آپ مجھے گینڈی کھاتا آ کے فون کرو, میں آپ کو گینڈی کھاتا سے لے کر آؤں گا. گینڈی کھاتا جی نہیں, رات میں اسی کے سے آؤ, لیکن ادھر میں نہیں جاتا. اگر جاؤں گا تو پھر تمہارے پاس ضرور فون کروں گا. میرا نمبر لے لینا. جی ہاں میرا نمبر لینا, میں نے بات بھی آتا رہتا ہوں. نور حسین صاحب جی حضرت. 10 منٹ. اگر قاری صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں ان سے بات کہہ رہا ہوں. اگر یہی بات جی میں فضائل اعمال یعنی کہ فضائل صدقات کے حصہ اول میں صفحہ نمبر 164 صفحہ نمبر 137 میں دکھا دوں, اور آپ کے سامنے کتاب کھول کر آپ جو کتاب کہیں سے بھی لا سکتا ہوں, اپنے گھر سے کتاب اٹھا کے لاؤ, فضائل اعمال فضائل صدقات. اچھا. اگر میں یہ بات دکھا دوں آپ کو کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی, اور اللہ اگر عطا یہ جانتے, اور سنو اگر یہ بات اگر آپ کے علماء نے تسلیم کر لی کہ ہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ بات غلط ہے, آپ اس وقت کیا کہو گے پھر؟ کس وقت جب یہ بات ارے یار سنو تو. اچھا سنو, آپ نے جانتے مولانا عارف کو جوہرا پور میں؟ نہیں اتنا گن میں نہیں جانتا. نہیں مولانا عارف کو جانتے ہو؟ نہیں اتنا گن جانتا میں. بہت آگے میں نہ. ارے اکڑ میں ان کا عیدگاہ روڈ میں بڑا مدرسہ مولانا عارف کا. ہاں بڑا مدرسہ تو ہے, ہاں لیکن میں نہیں جانتا ان کو. سنو میں نے مولانا عارف سے بات کی فون میں, اس بار ریکارڈنگ پڑی نا, ابھی ریکارڈنگ سینڈ کرتا ہوں, ابھی سن لو ریکارڈنگ. مولانا عارف نے کہا کہ شفیع جس نے جملے کہے ہیں وہ میرے استاد ہے. مولانا عارف وہ میرے استاد ہے. انہوں نے کہا شفیع جس نے بات کہی ہے نا کہ شان ہوئی یہ جانتے ہیں اللہ کے میں بات ہوتی, وہ آدمی رائے حق سے ہٹ چکا ہے. وہ ریکارڈنگ مجھے بھیج دو حضرت ذرا. ابھی سنو 1 منٹ کال پہ رہو آپ. ہاں مجھے بھی بھیج دو, میں انہیں بھیج دیتا ہوں. ہاں میں بھی بھیج رہا ہوں. بات دیکھو میں مولانا بھی بھیج رہا ہوں, وہ دیوبندی ہے, اور آپ ان کا نمبر بھی سینڈ کرا, نمبر بھی لے سکتے ہیں ان کا میرے پاس. ہاں حضرت مجھے دے دو نمبر بھی اس کا, میں ذرا پوچھ لوں. ابھی سینڈ کر رہا ہوں, منٹ. ارے یہ تو کھیتی ہے, کبھی ادھر کٹتی کبھی ادھر کٹتی. نہ اللہ یہ مت بولو, میں بھی دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں. جو دیوبندیوں سے نکلتا نا بڑی بری پھاڑتا ہے. 90% بریلوی دیوبندی بننے. ہاں جو وہ دھوکے میں مت ہے, وہ دھوکے میں جا رہے ہیں, وہ دھوکے میں جا رہے ہیں للہ, وہ دھوکے میں جا رہے ہیں. ارے میں تمہیں اپنے گاؤں میں بھی اور تم بھی دھوکے میں ہو. سنو تم بھی دھوکے میں ہو. اگر میں ابھی دیوبندیوں کے عقیدے تم سے بولنے لگا نا تو تم سب کو منع کرو گے. 1 لاکھ دیوبندی میں سے ایک بریلوی اگر سنو بن گیا تو تم بھی دھوکے میں ہو دیوبندیوں کے ساتھ. اچھا تم جان بوجھ کے دیوبندیوں کے ساتھ ہو؟ کون میں؟ ہاں جان پوچھ کے. تم دیوبندیوں کے کفری عقیدے کو جانتے ہو یا دھوکے میں دیوبندیوں کے ساتھ ہو؟ ایک بات تو میری بات سنو, اپنی زبان کو تھوڑا لہتے میں بولو. کفر کا نام نہ دو. کفر دیوبندیوں کے کفر کو جانتے ہو؟ میں تمہیں کافر نہیں کہہ سکتا. وہی بات, ہم کافر ہیں نہیں, مسلمان ہیں, مومن ہیں, ایمان والے ہیں. میرے عالم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بے سلوکی سے بات نہ کرو, کسی کو کافر نہ کہو, عزت سے پیش آؤ, اخلاق سے پیش آؤ. کافر کہہ سکتے نہیں ہیں, کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں نہیں. ارے میری بات تو سنو, میری بات سنو, کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کون ہے کافر تمہاری نظروں میں؟ تھانوی کافر ہے, تھانوی کافر ہے. اور وہ کیا احمد رضا کافر ہے؟ نہیں ثابت کر دے, ثابت کر دے, ثابت کر دے. ثابت کرنا ہوگا, کھول کے دیکھ, تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ثابت کرنا ہوگا. ثابت کر, ثابت کر, ثابت کھود کے دیکھ لے یار. ابے تیرا تھانوی خود جو ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانتا ہے, مومن مانتا ہے. حسین احمد مدنی, ارے حسین احمد مدنی پتا ہے کہاں ہے تمہیں؟ مسجد حسین احمد نے کہاں دفن ہے پتا ہے تمہیں؟ جنت البقیع میں ہے, جنت البقیع میں. ارے وہ جنت البقیع میں دفن ہو جا یا کہیں بھی ہو جا, جائے جہنم نہیں. جو بھی گستاخ رسول ہے جہنم میں جاگا. ارے اللہ نے بلایا جنت البقیع میں آ جا. ابے جہنم میں جاگا تو ایسے تو وہاں سعودی نہ مر رہے ہیں, تو وہ بھی تو وہیں میں دفن ہو رہے ہیں. وہاں نہیں, ان کے قبرستان کہیں بھی مر جا, چاہے مسجد نبی میں دفن ہو جا, سمجھا, جائے گا جہنم نہیں, جائے گا جہنم میں. ایک کام کر لو, چیلنج ہے تمہیں میری طرف سے,
अरे मेरी तरफ से भी चैलेंज बहुत सारे हैं। चैलेंज है। अबे चूतिया की चौखट हासिल कर भाई, और तू एक तेरा भाई, मेरी तू बात कभी भी चैलेंज है मेरी तू तरफ कभी से। भी हमसे बात नहीं कर सकता तू भी ठीक से। दफन हो कबर में, मैं भी दफन हो रहा, 2 घंटे बाद खोले कबर किसकी सही निकलेगी। चैलेंज है, आजा मर जा। अरे हमारे उलमा ने आजा, चैलेंज है। खोलते हुए तेल में कूदने का वादा चैलेंज किया है। आजा मर जा। खोलते हुए तेल में, आजा, चैलेंज है, मर जा, हाँ, कबर में दफन हो जा। 2 खोलते घंटे हुए के लिए तेल मेरे में कूदने का पास। वादा आजा, किया। चैलेंज है तुझे। हाँ, खोलते हुए तेल में कूदते आजा। आजा, यही मिलूंगा हाँ, तुझे हाँ। शरीफ में। खोलते हुए तेल में और अल्लाह सुनो रब्बुल इज्जत बचाएगा मेरी इंशाअल्लाह। बात, सुनो मेरी बात। आजा। सुनो मेरी बात। हाँ, जमाने जहालियत में मैं बरेलवी था। अबे अंदर अब कितना बड़ा पढ़ा लिखा है तू? अच्छा, अब कितना बड़ा पढ़ा लिखा है ये बता। अब कितना पढ़ गया? अब कितना पढ़ गया? अस्तगफिरुल्लाह, मेरी बात तो सुनो। अबे अब कितना पढ़ गया? अब ये बता, तू जमाने जाहिलियत की बात कर रहा है, अब कितना पढ़ गया? कितना समझदार है? जाके देखो, यासी के अड्डे खोल रखे बरेलवी में। अबे वो जामिन अली जलालाबादी की मुरीदनी है, वो सहारनपुर में इकट्ठी है। हाँ, सहारनपुर में बहुत इकट्ठी है। जामिन अली जलालाबादी की मुरीदनी है, उसमें हो सकता है अम्मा भी मुरीद हो। कलियर शरीफ की रोड पे हम जूते भी नहीं पहनते, नंगे पैर जाते हैं। और तुम अय्याशी के अड्डे वहाँ बिजनौर से पता नहीं कहाँ से लड़की आती है। अबे जाहिल, अय्याशी के अड्डे तो तुम्हारे मुल्लाओं ने खुलवाए हैं, और तुम्हारे मुल्लाओं ने अय्याशी वाली औरतों को ठीक किया है तवीजों से। जाहिलो, फिर मिठाई खाई है उस पर। तुम्हारे पास तुम्हारे जाहिल मुल्लाओं ने फिर मिठाई खाई है उस पर। अगर तुझे यकीन ना हो तो सबूत भेजो, या जाके हिकायत हो, या किताब पढ़ ले, सारी जगह गया हूँ, किताब पढ़ ले, जाके किताब पढ़ ले। एक औरत अपनी बेटी को लेकर आई थी और कहा था कि में कलियर शरीफ में अभी आगे देखो। अबे जाहिल, काम चल रहा वहाँ। ए जाहिल, काम चल तेरे जैसे जाहिल बहुत फिर रहे हैं। शफी भाई ये कह क्या रहा था? शफी भाई ये हरामी बोल रहा था कि तू मेरा फोन उठा ले, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कहा क्या कर लेगा भाई तू? हाँ, ये कारी साहब सुनो, जो ये बोले देवंती सुनो, अगर कोई आदमी किसी गैर मुस्लिम के हाथ से कोई लड्डू खा ले, कोई आलिम, तो उसके लिए क्या हुक्म है? किसके लिए? तुम्हारे मौला महमूद मदनी है, वो आचार प्रमुख किशन है, उनका हाथ से लड्डू खाते हैं, और वो जबकि हिंदू है, गैर मुस्लिम, तो क्या हुक्म है इसका? उलमा क्या फतवा देते हैं? लड्डू तो कई तरीका के, कई पूज रखा है उसका है, या कभी लड्डू है, मान ले लड्डू है, वो खाया हाथ से। अच्छा, क्या हुक्म उसके बारे में? कुछ नहीं है। सुनो, दारुल उलूम देवबंद का क्या फतवा उसके बारे में? दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा मुझे बताओ, फतवा इसके बारे में क्या हुक्म है कि जो आदमी गैर मुस्लिम हाथ से लड्डू खा ले उसके हाथ से मुंह में, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? उसके हाथ से? हाँ, या अपने हाथ से? उसी के हाथ से। अच्छा, इसके बारे में क्या हुक्म है? वो तो आलिम बता के, मैं इतना बड़ा वो तो है नहीं। तो तुझे पता नहीं कि हमारे आलिमों का क्या कौल है, हमारे आलिमों का इसके बारे में क्या हुक्म है? तू बात करता है हम लोगों से, हैं? तुझे ये पता नहीं मेरा आलिमा का, मेरे उलमा का क्या इत्तिफाक है, मेरे उलमा का इसके बारे में क्या हुक्म है? ये जाहिल है, जाहिल, ये भी अनजान है देवबंदियों में। तो जाहिल है तुम्हारे साथ में जो बात कर। अरे तू जाहिल अनजान है देवबंदियों के साथ। तुम्हें अपने उलमा का कौल का पता नहीं, तुम्हारे उलमा का क्या कौल है? तुम बात करने चलो हम लोगों से, पहले अपने उलमा को देखो, तुम्हारे उलमा का क्या हुक्म है इसके बारे में? तुम्हारे उलमा क्या कहते हैं कि किसी गैर मुस्लिम के हाथ से लड्डू खाना, उसके बारे में क्या हुक्म है? और इनके यहाँ तो हजरत हकीकत ये है कि होली दिवाली की पूड़ी कचौड़ी सब जायज है इनके लिए, मगर इमाम हुसैन के नाम का शरबत बिल्कुल नाजायज, टिकला बिल्कुल नाजायज, गौसे आदम की नियाज बिल्कुल नाजायज। ये है इनका हाल। तो अरे तुम तो क्या समझे? ऐसा है, मुजोरी कम कर। तेरी अम्मा ने कहीं कोई गलत हरकत कर दी होगी, तब जाके तू बैठा हुआ चला जाता है। रोशन साहब जी, एक मसला और है, सुनो, इसमें से बता रहे हैं मसला और। तबलीगी जमात में जाना, औरतों का जाना जायज है ना? हाँ यार, जाने लगे, चल बता, तबलीगी जमात में क्यों लेके जाते हैं? अच्छा बताओ, कैरिया जायज है, कैरिया जायज है। तबलीगी जमात में जाना औरतों का जायज है ना? जायज जायज है, जायज है ना? तुम सुनो, मेरा तुम किसी देवबंदी के उलमा के फतवे से ये साबित कर दो कि जाना जायज है। रब्बे काबा की कसम, मैं मसले के आला हज़रत को छोड़कर भी देवबंदी हो जाऊंगी। हो जाएगा पक्का? पक्का भी पक्का हो जाएगा, पक्का बिल्कुल। देख लिए? हाँ, अच्छा मैंने साबित कर दिया कि जब तुम्हारी जमात में जाना होता है नाजायज हराम है, मौलाना यूसुफ जो जहानवी शहीद के फतवे से, तो तुम्हें मसले देवबंदी छोड़ना पड़ेगा, आगे पड़ेगा तुम्हें। हाँ, मेरी बात है, जब अय्यासी के लिए जा सकती है, बाजारों में, सड़कों पे, रोड पे, ब्याह शादियों में, कलियों की पीरों पे जा सकती है, तो वहाँ अगर अल्लाह के रास्ते में जा रही तो तुम्हारे लिए हराम है। अब सुनो, हर चीज के लिए हुक्म होता है, हर चीज का हुक्म होता है, वो हुक्म है, वो हुक्म है। कौन सा? ये जो जमात में जाने के बाद हुक्म है। हाँ, हुक्म है।
तो दिखाओ। हैं? हुक्म है बस, मैं कह रहा तुम्हें। तुम कहाँ है सबूत तो देगा ना। तुम्हारे पास भेज दूंगा मैं हुक्म, ये तुम्हारे पास मैं फतवा भेज दूंगा इसका, तुम्हारे पास व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। अरे तुम्हारे मौलवी मना कर रहे हैं, तुम्हारे मौलवी मना कर रहे हैं कि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने रोक लगा दी तो हम इसको नहीं मानते हैं जायज, और तू कह रही है कि हाँ जायज है। तू बड़ा है या तेरे मुल्ला बड़े हैं? मना करते हैं। अरे वो तुम्हारे पास हो गया। मौलाना यूसुफ लुधियानवी शेख का फतवा है कि औरतों का जमात में जाना नाजायज और हराम है। अहमद रजा ने हदीस को भी और कुरान की तफसीर बदल रखी है। आपके मसाइल और उनका हल सभा नंबर 125-126 में लिखा हुआ है। मौलाना यूसुफ लुधियानवी शेख का फतवा, मौलाना यूसुफ लुधियानवी शेख का फतवा है और आपके मसाइल उनका हल इसमें लिखा हुआ है सभा नंबर 125-126 में कि नाजायज और हराम है जाना। कौन सी किताब में? आपके मसाइल और उनका हल, मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद का फतवा। अच्छा जी, सभा नंबर 125-26। ठीक है, अभी खोल देखते हैं उसका भी। हाँ देखो देखो देखो, ठीक है, अभी देख रहे हो? अभी क्या मैं लेके आया हूँ गाड़ी पे। अच्छा हाँ देखो, कंपनी में हूँ फिलहाल तो मैं। हाँ तो ये कह देना चलो देख लूंगा। हाँ देखते हैं। हाँ अरे सोच समझ के बात बोला करो, आई समझ में? हम समझ रहे हैं शायद देख रही है। अरे देखते हैं, जाके देखेंगे जब भी तो देख रहा है कि तुम्हारे सामने। अबे जाहिल तो लफ्ज ऐसा इस्तेमाल करना। हाँ चलो देख लूंगा। अहसनुल फतावा में लिखा है मौलाना जौहरपुरी ने, और फतावा रशिया में लिखा है रशिया गंगोही ने, ठीक है। उनका भी फतवा है कि जाना नाजायज हराम है। और मुफ्ती किफायतुल्लाह जो देवबंद के आलिम थे वो गए एक मरतबा मौलाना लियास गए मुफ्ती किफायतुल्लाह के पास कि हजरत हमें इजाजत दो, हम औरतों को जमात में लेकर जाएं। तो मुफ्ती किफायतुल्लाह ने कहा कि बिल्कुल हुक्म नहीं है इस बात के बारे में। अरे यार तुम मुनाजरे में तो भाग जाओ, तुम्हारे आलिम मुनाजरे में तो आते नहीं। अबे जाहिल तू ये समझ कि मुझसे कौन इंसान बात कर रहा है। बिल्कुल गुजर बस्ती खैर दिखा था ये देवबंद के मदरसे से, देवबंदी मदरसे से पढ़े हुए हैं, और ये तेरी तरह अनजान नहीं है, जाहिल नहीं है तेरी तरह, ये पढ़े लिखे हैं। देवबंद के मदरसे से पढ़ लिया, वो सिर्फ एक अहमद रजा था जो देवबंदी शामिल हुआ। देख बदतमीजी मत कर, बदतमीजी मत कर हरामजादे, बदतमीजी मत कर किसी वहशिया की नापाक औलाद, बदतमीजी मत कर हरामी की सुअर की औलाद। बदतमीजी क्यों कर रहा है? जैसे मैं तुझसे बात कर रही हूँ प्यार से ऐसी बात करता रहे। हराम की औलाद, नज्द की नाजायज औलाद, हराम की तू सुअर की औलाद। तू मेरा भी ठीक है, ध्यान रखिए मेरे बच्चे। बस ये है देवबंद में, देवबंद की तालीम बस यही तालीम है देवबंद की। हाँ, रशीद अहमद गंगोही और कासिम ननौतवी खुलेआम अपने तमाम मुरीदों के और शागिर्दों के सामने उल्टा पलटी करते थे ना साले हरामजादे। अब तू नहीं बोल रहा उल्टा, तू परसों से तो मैं तो बोलूंगा, सुनाऊंगा। हरामी साले, किसी वहशिया की नाजायज औलाद, बाजारू औरत के पिल्ले। हाँ उनसे होता जाती है जमात में, हाँ मस्जिदों में हैज देती है, हैज देती है और वहाँ जाके जिना कराती है। जो जवान लड़के जाते हैं ना, और जो जिनको कई कई महीने हो गए होते हैं आते हुए, उनके साथ जिना कराती है इनकी माँ बहन। अरे लड़की वो जिना करती हैं इनकी, मतलब जाके जमात। हाँ सही बात है। ये फतवा का मांगा के गैर औरत का आवाज सुनना मत के लिए हराम है। इनकी औरतें जाकर तकरीर करती है जमात में, जाकर हराम काम खुद करवाते हैं लोग, तकरीर सुनते हैं, इनकी लड़की सब सुनते हैं, और किसी को आवाज पसंद आती है वो जाकर आशिक हो जाता है और काम शुरू कर देता है मस्जिद में ही। बस 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 बस। और बेहश्ती जेवर इसीलिए पढ़ाई जाती है, तुम्हारी बहन बेहश्ती जेवर इसीलिए पढ़ाई जाती है इनको, इनकी लड़कियों को। वो जवान होने से पहले जवान हो जाती है, समझे? जो तो थारे लिए थी वो। हाँ बेहश्ती जेवर इसीलिए पढ़ाई जाती है तुम्हारे यहाँ। थारे लिए वो साले हराम के पिल्ले। अरे नहीं कुछ करना वैसे झांट कहीं। हाँ अशरफ थानवी ने इतनी। सुनो, मैं देवबंद से पढ़ा हूँ, मैं देवबंद के एक एक आलिम को जानता हूँ, दारुल उलूम देवबंद के अंदर भी सबको जानता हूँ, टोटल को। मैंने मसला देवबंद के अंदर भी खोला है कि मुझे इसका जवाब दो। ये लिखा है कि अल्लाह को इल्म नहीं है, क्या मसला है? क्या किताबें बंद कर दो? अरे किताबें बंद क्यों करें? जब जो इंसाफ है ना उसको बताओ ना हक क्या है। जी जी जी, हक इनकी जुबान से ही नहीं निकलेगा, हक गलत पूछेगा ही नहीं। रुड़की वाले ये जानते हो उन्हें, है जानते हैं उन्हें? चला गया, जानते हो? चला गया चला गया चला गया ये हराम खोरे हैं। हाँ साला शैतान की औलाद। बता यार कैसे, कौन सा क्या आदमी है? अरे ये साले मुजोर होते हैं हजरत, मुजोर। हाँ और कुछ नहीं है। हाँ मुजोर है सिर्फ। और इसकी हिम्मत नहीं है मुनव्वर साहब, इसकी हिम्मत नहीं है हमारी गुजबस्ती में आ जाए यहाँ पर। अरे ये आएगा भी नहीं ये साले, मैंने तो अपना पूरा एड्रेस दे के रखा हरामजादों को। हाँ बड़ी धमकियां मिलती हैं मुझे, कर दूंगा बाद में, पूछो भी। जी जी जी।
गुजर बस्ती के अंदर मेरे के अंदर ना 100% देवबंदी है, 100%। जी, एक भी नहीं बोलता होगा आपसे इंशाल्लाह? एक भी ना बोलेगा आपसे, एक भी ना टक्कर खागा? और मुझसे खुल्लम खुल्ला ये लोग, मैं इसको कहता हूँ, मैंने कहा देवबंदी काफिर है, और सारे गुज्जे कहते हैं हमको काफिर कहता है, देवबंदी को इससे पेंची डालने, इसमें हमारे यहाँ पंचायत बैठते ना गुजरों में, हाँ, और लोगों ने मुझ पर पंचायतें बिठाई, बहुत सारे काम किए मेरे साथ में। इसका तुम्हें काफिर को बोला, मैंने बोलता हूँ काफिर तुम मुझे गलत साबित कर दो। जी 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 लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझे आज तक गलत साबित करते। मैं उन्हीं में रह रहा हूँ, मैं उन्हीं की संबंध है, मेरे बाप की देवबंदी है खुद जी की। जी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे कुछ कह सके। बेशक बेशक, यही है हक्कानियत, हाँ, यही है सच्चाई। अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं गुजर बस्ती के अंदर मसले के आला हजरत के नाम से मदरसा खोलूंगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आप खोलिए मदरसा। मैंने ये फैसला किया है, और फिर सुबह दिखाऊं मैं लोगों को क्या सच्चाई और क्या झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हजरत। तो हजरत आपने क्या क्या किया हुआ है? हिफ्ज, क़िराअत, मौलवियत? तो मैंने हिफ्ज भी किया है, और मैंने एक कायदा था नूरानी ना, हर दो में गया, जी मैंने वो पढ़ा था बाकी। और उसके बाद मैंने फिर मौलवी के 3 साल पढ़े हैं बाशी बाग में, मुफ्ती अब्दुल गनी है। अच्छा हाँ, उनके पास मैंने फिर मौलवी पढ़ी 3-4 साल की। अच्छा अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ऐसा है कि अपने जो मेरे अपने मसाइल है अपने, जी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, इंशाल्लाह खुद निकाल लेता हूँ अपने हिसाब से। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है हजरत। मगर अच्छा, उस टाइम पे मैं कश्मीर में था जब हमारी आपकी बात होती थी, तो जी। लगभग 1 साल या 2 साल के करीब हो गया है। हाँ, 2 साल हो गए तकरीबन। जी जी जी। तो जी। आप मुझे बार बार चिढ़ के कॉल किया करते थे, हाँ, मैं आपको कॉल करता था और मैं हर बार आपको फंसा देता था। जी जी जी। हैं? अच्छा, उस टाइम ऐसा आपको कैसा लगता था? बस मुझे इतना बताएं हजरत। अरे मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार, फिर उस वक्त मैंने किताब नहीं पढ़ी आशिफ अली थानवी की ना, मैंने पढ़ रखी थी उस वक्त। जी मैंने कहा यार ये बार बार कहते हैं कि ऐसा लिखा वैसा लिखा, मैं खोल कर देखता हूँ एक बार। जी। तो मैंने जब खोल कर देखा है, तो उस वक्त में मेरे पास मौलाना रईस थे यहाँ के लंडोरा के। अच्छा हाँ, तो मैं उनके पास मौजूद था। मैंने कहा था ये किताबें हमारी बता रहे हैं और लिखा वैसा बता रही है, गलत है सही है? हाँ कभी खोल देखो, हो सकता है मैंने कभी देखा नहीं। हाँ इन लोगों को क्या होता है कि ये लोग फारागर हासिल कर लेते हैं देवबंद से, हाँ। ये अपने उलमा की किताबों का मुताला नहीं करते, सिर्फ वो पढ़ते हैं मौलवियत मसले मसाइल, जी जी जी। नमाज कैसे होगी, जमाने कैसे जाएंगे, हाँ बस ये 2 चीजें देखते हैं। जी। बाकी अपने उलमा की किताबों का मुताला नहीं करते। हाँ। अच्छा, आप हैरत में रहते हो हजरत? है, मैं हवाला भी भेज देता था आपको, चलो हवाला पढ़ लो। तो मैंने उस वक्त आपके हवाले नहीं पढ़े। अच्छा मैं बल्कि दारुल उलूम देवबंद में गया हूँ, वहाँ जाकर मैंने सब किताबें जो आपने मुझे बताई, मैंने नाम वहाँ से लिखे मैंने। अच्छा मैंने वहाँ से वो किताबें वहाँ जाकर मैंने पढ़ी, कुतुब खानों में बैठकर। अच्छा। हर किताब मांगता था, मैंने ये खरीदनी है, वो मुझे देते निकाल के फौरन। हाँ मैं सबका नाम लेता था, मुझे देते थे, मैं पढ़ता था। हाँ। बस मैंने कहा यार वो बिल्कुल सही कहते नूर हसन साहब। अच्छा। हाँ, मेरे को बात बिल्कुल सही कहते थे, और हमारे उलमा का ये नजरिया। फिर मैंने उलमा से बात की, उलमा ने कहा यार ये उनकी बात जान, वो जाने, वो मर गए, वो जाने, उनका काम जाने। हाँ मैंने कहा जब उनका काम जाने तो हम उन लोगों को मानने वाले हैं, और बुखारी शरीफ की हदीस भी है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जी, कि जिसने जिस कौम से मुशाहबत रखी उसी में से हैं। बेशक। तो हम अपना नाम उलमाए देवबंद से क्यों जोड़े हैं? फिर जी। मुशाहबत हो गया नबी। मैं भी इसी वजह से निकला था हजरत। हाँ, मुझे मुशाहबत भी, की वजह से मैं निकला हूँ, सिर्फ हाँ मुशाहबत हाँ, की वजह से। मुझे भी एक सीधे रास्ते की जरूरत थी। जी मुझे भी एक सीधे रास्ते की तलाश थी कि वो जो जी जी जन्नती रास्ता है वो है कौन सा, और कौन सा होगा, उसकी पहचान क्या होगी। जी जी जी। तो मैंने देखा यार, मुझे लोगों ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम क्यों जिम्मे से कहते फिर रहे हो, तुम उन्हें छोड़ दो, किताबों को अमल ना करो, तुम बाकी को। हाँ, मैं देवबंदी हूँ। मैंने कहा लफ्ज़ देवबंदी ही मेरे लिए खतरनाक है अब तो। जी मैं लफ्ज़ देवबंदी पे मुझे चिढ़ा वो। जी जी, बेशक। हाँ, और बाकी मैंने वो मौलाना कौसर नियाज़ी साहब हैं, इनके देवबंद के आलिम है वो, मौलाना जी। कौसर नियाज़ी पाकिस्तान के। हाँ उन्होंने एक किताब लिखी, इमाम अहमद रजा नाम की किताब लिखी उन्होंने। जी जी जी। उन्होंने उसमें लिखा है कि अशरफ अली थानवी ने खुद कहा है कि आला हजरत ने हमसे जिन जिन किताबों के बारे में हमें काफिर कहा, जिन बातों की वजह से आला हजरत ने हमें बिल्कुल सही में काफिर कहा। अगर यही बात आला हजरत लिखते तो हम भी आला हजरत को नौजुबिल्लाह काफिर कहते। जी और हम है ही, हमारी बातें बिल्कुल इसी तरह की लिखी, हमने गुस्ताखी कर रखी है। जी। और मौलाना कौसर नियाज़ी पाकिस्तान के आलिम है, और देवबंद से फरागत हासिल करके गए वो। और एक बात ये कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने रोटी के निवाले नहीं खाए हैं, टुकड़े नहीं खाए हैं, जितना मैंने किताबों का मुताला किया है। जी जी जी। और वो कहते हैं खुद अपने आप के लिए कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा इल्म वाला समझता था, और मैं सोचता था कि इस वक्त हिंदुस्तान में मेरे जैसा इल्म रखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। जी जी जी। मतलब हिंदुस्तान में या दुनिया में। हाँ, दुनिया में। हाँ, तो जब मैंने
आला हजरत की फतावा रजिया शरीफ की पहली जिल्द को पढ़ना शुरू किया तो मैं अपने आप को ऐसे समझ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी समंदर के किनारे खड़े होकर सीपियां चुन रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मैंने भी सुना, तकरीर सुनी मैंने उनकी है। जी 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 वो तो अभी आगे है, मैं तो किनारे पे खड़ा हूँ। जी जी बेशक इस तरह। तो ये है कि आला हजरत को तो क्या ये वो करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं ना। आला हजरत जैसा कोई मगर ना कोई बुरा कहता ना आला हजरत को तो यार दिल में खंजर सा चुभता है, बहुत ही गुस्सा आता है। मतलब मेरा दिमाग बहुत ज्यादा आउट होने फिरता है, मगर मैं कंट्रोल करता हूँ। अरे मैं बिरलियों का इतना खुल्ला दुश्मन था। जी मुझे मालूम है, तुम मुझे बार बार कॉल किया करते थे, मैं तुम्हारा कॉल काट दिया करता था। अरे नौजुबिल्ला मैंने एक मरतबा आला हजरत को काफिर कहा था। लेकिन जब मैंने ये किताबें पढ़ी इनकी और फिर मैंने आला की किताबों को मुताला किया, मैंने इनके उलमा की तकरीर सुनी जी, और मैंने फतावा रिजवा की बहुत सारी जिल्द अपने फोन में डाउनलोड करके पढ़ी जी, और मरफूजात आला को मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि इनसे अच्छा तो आलिम को दुनिया में आया नहीं। मैंने ये देखा कि इन्होंने चलो कुछ नहीं किया, और तो जो कुछ किया लोग कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया। भी लोग कहते हैं मैंने ये समझा कर इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी तो नहीं की। जी 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 सही बात है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए है कि आला हज़रत के बारे में कहते हैं इन्होंने दिन का काम नहीं किया, इन्होंने तबलीगी काम नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। मैं समझता हूँ इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की। अगर तुम नबी की शान में गुस्ताखी दिखाते तो मैं मान जाऊंगा। जी जी जी। और हजरत एक चीज मैं बताऊं सबसे बड़ी, नबी की शान में तारीफ की, और ये है कि एक तो होता है ना मतलब वो तारीफ करना, मोहब्बत करना, एक होता है बेखुदी। जी आला हज़रत इतने मतलब इतने बड़े इश्क में घूम गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इतने इश्क में है कि बेखुदी हो गए, बेखुदी जो अल्फाज नहीं कहते वो भी कह दिया आला हज़रत ने शान में। लेकिन आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाया नहीं, जी, शान को बढ़ा देना, ये नहीं कि शान को ऐसे बढ़ा दिया, नहीं, वो बढ़ाया जो शान थी। जी। और हजरत जो शान थी हम उसको भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि खुद हुजूर फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। जी जी। तो जो सहाबा इकराम ना जानते, जो कि 24 घंटे हुजूर के साथ हैं, जी जब वो हुजूर की असली हकीकत को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आला हजरत वो कहाँ तक लिख सकते हैं। जितना आला हजरत को इल्म अता हुआ, जी जो जो शान आला हजरत को पता चली, वो मेरे आला हजरत ने अपने आका की शान में बयान किया। जी जी। और ये लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आला हजरत ने जो है, आवाज कट गई आपकी, आवाज कट गई आपकी। हेलो हेलो, हाँ आवाज कट गई। इन लोगों ने शान तो बयान नहीं की जी, इन लोगों ने शान को और घटाया। जी जी जी, इन्होंने शान को घटाया है, ये शान तक नहीं पहुंचे और इन्होंने शान को घटा दिया और ज्यादा। जी। और ये हमारे आला हजरत पर इल्जाम लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं, कहते हैं देखो भाई देखो, बरेलवियों ने तो रसूलुल्लाह को अल्लाह के बराबर मिला दिया, माज़अल्लाह। जी जी हाँ माज़अल्लाह, जी जी कहते हैं ना, इल्जाम लगाते हैं ना। हाँ जी कहते हैं ये लोग। तो हमारे जितने भी अकायद हैं, जी जी जी, कोई भी कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। बेशक बेशक। हाँ जी। अरे यार, हुजूर के मीम मोहम्मद नाम की जो मीम है ना, लफ्ज मोहम्मद की जो मीम है, जी 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 जी, उस मीम का भी जो है ना हक अदा नहीं हो सकता। अगर हजरत हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद के मीम की अगर तारीफ लिखने बैठे हम लिख नहीं सकते। जी, हम उसमें अगर तकरीर करना चाहे तो तकरीर कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन मीम की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। 7 समंदर और पूरी दुनिया के जितने दरख्त हैं उनका सबका कलम बना लिया जाए, जी जी, फिर भी हुजूर की जो है तारीफ नहीं लिखी जा सकती। नहीं लिखा, बेशक जी। और ये उसी के मुताबिक है जो हुजूर ने फरमाया जी जी कि मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। जी, कोई नहीं जानता, बेशक। चलिए शफी भाई, बहुत टाइम दिया आपने, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हजरत, और आपने समझाने की कोशिश की। खैर कोई समझे या ना समझे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आपकी बात को जरूर समझेंगे हजरत। हजरत मेरी बस्ती में मुझे लोग कहते हैं ना, गुजर जितने भी हमारी बिरादरी के, जी, कि तू अकेला है, तेरी बात को कौन मानेगा। मैंने कहा मैं आप जब मदीना में तशरीफ लाए थे मक्का में, जी, तो मेरे नबी अकेले थे और अबू जहल का ये कहना था कि तुम्हारी बात को कौन मानेगा, तुम कौन हो, जी, तुम तो आसमान से वैसे आए हो, तुम हम जैसे हो, जी। तो मैंने कहा वहाँ भी लोगों का यही हाल था, जी। तो हर कौम में जब फिरौन पैदा होता है तो अल्लाह को मूसा भी पैदा करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ा तुम दज्जाल हो, मुझे वैसे सारे देवबंदी, जी। मैं तुमसे कह रहा हूँ समझ जाओ, अगर तुम्हें कहता हूँ ना मैं तुम्हें काफिर कहता हूँ, तुम मुझे काफिर साबित कर दो, मेरा आला तुम कर दो, जी।
तो मैं حضرت दोबारा से देवबंदी में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारा आलिम काफिर है तो काफिर है। بے شک بے شک حضرت، میں نے بھی یہاں ہاتھ کی ہتھیلی پر جان کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کے میں نے جو ہے قدم اٹھایا ہے یہاں. میں حضرت یہی میرا حال ہے، بالکل یہی. ہاں یہاں تک کہ یہاں میرا باپ بھی میرے یہاں خلاف ہے، میرے پورے پریوار کے میرے چچا تایا سب میرے خلاف ہیں آج تک. جی لیکن میں کسی کی بات بس نہیں لے رہا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کو جانتا ہوں بس. بے شک بے شک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جی بے شک. آپ کے اس عمل سے جو آپ نے حق کو قبول کیا ہے جی جی انشاءاللہ بہت تبدیلی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کا خوف ان شیطانوں کے دلوں پر ڈال دے گا. یہ رب کعبہ کی قسم، میں نا ایک چھوٹا سا انسان ہوں، میں چھوٹا سا بالکل چھوٹے انسان ہی الحمدللہ جو ہے انقلاب پیدا کرتے ہیں. میرا اتنا خوف ہے ان لوگوں کے دلوں میں. جی مجھے اتنا بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ رات میں آ کے مجھے مار نہ دیں، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے خود. اللہ حفاظت کرتا ہے حضرت اللہ. اللہ حفاظت کرتا ہے. سنو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے، میں شوری ہونے میرے گھر میں شوری ہونا آلو چیرنے والی، ہاں میں اس کو بھی چھپا کر سوتا ہوں. میں نے کہا لوگ کہیں اگر آپ مجھے مار نہ دیں، لیکن پوری گجر بستی میں اس وقت خوف ہے، میرے نام سے چڑھتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں چڑ جاتے ہیں. جی 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 میں نے کہا میں تو آپ سلام کو مانتا ہوں، تمہیں اگر مانا تو مانو ورنہ تمہیں چڑھنا چھوڑو. میں نے کی شادیوں میں، بیاہ میں، ان کے کسی کاروبار میں اپنے چچا تایا کہ کسی میں بھی نہیں جاتا میں اس وقت. آپ کو دیکھ کر ان لوگوں کے ہاتھ پیر پست کر دیتا اللہ تعالیٰ. ہاں بالکل پست ہے یہ لوگ. ہاں اور دلوں میں خوف پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ. ایک مومن کی ہیبت بہت بھاری ہوتی ہے حضرت. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. بے شک سبحان اللہ. ہاں پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. ہمارا تو سب کچھ گنبد خزہ کل بھی تھا آج بھی ہے. بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت. تو اس طرح کا معاملہ لوگوں کے دلوں میں خوف تو ہے ہی ماشاء اللہ. اللہ کا فضل و کرم سے ہمارا کیا خوف ہے، اللہ اس کے رسول کا ہی خوف ہے ان کے دلوں میں. اور انشاءاللہ جب تک ہم اس کام میں انشاءاللہ لگے رہیں گے انشاءاللہ حضرت. دیکھیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے. جی سمجھے حضرت. اور ایک بات آپ نے سنی ہوگی، جو اللہ کے نبی کی شان میں توہین کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا، ہدایت کی توفیق عطا نہیں فرماتا. جی جی بے شک. ولی کی شان میں توہین کرنے والا واپس پلٹ آتا ہے، مگر نبی کی شان میں توہین کرنے والا واپس پلٹ کے نہیں آتا. جی بے شک نہیں آ سکتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کمان سے تیر نکل گیا واپس نہیں آتا. تیر تو واپس آ سکتا ہے مگر ایک کسی نبی کی شان میں توہین کرنے والا انسان دین میں واپس نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا. جی بے شک. سمجھے حضرت. یہاں تک مطلب میں نے سنا ہے علماء سے. جی جی یہی بالکل صحیح. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر قائم فرما دیا، جی اور آپ جو ہے بغیر ڈرے نڈر ہو کے اسی طرح اللہ کے دین کی خدمت کریں. حضرت میں یہ ابھی جو مجھ سے کہہ رہا تھا نا یہ لڑکا کہ جب میں کلیشے کے پاس ہوں میں گجر بستی میں آؤں گا تم سے ملنے کے لیے. جی حضرت میرے پاس یہ کیا آئے گا، یہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا. مولانا عبداللہ ان کا لڑکے ہیں ہمارے گجر بستی میں رہتے ہیں وہ. جی میں ان لوگوں کے پاس خود کتاب اٹھا کر گیا ہوں، خود اپنے ہاتھ سے. جی یہ میرے پاس کیا آئیں گے، میں خود ان کے پاس گیا ہوں لیکن ان لوگوں نے مجھے جواب نہیں دیا آج تک، جی اور نہ دے سکتے مجھے انشاءاللہ. جی الحمدللہ بے شک. ہلو ہلو اچھا حضرت آ گئے. ٹھیک ہے حضرت میں آتا ہوں. ٹھیک آتا ہوں. ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے. السلام علیکم. تم کھانا ادھر ہاں حضرت ایک منٹ ذرا. جی حضرت جی. فرمائیے. تو میں خود ان کے پاس گیا ہوں جی لیکن مجھے آج تک جواب نہیں ملا. اور میری گجرس میں بھی وہ رہتے ہیں مولانا ابھی بھی یہاں پر رٹکی والے جی دیوبندی، اور ان کے پتہ نہیں 10 علماء یہاں پر موجود ہے اس وقت بھی. جی 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 لیکن مجھ سے کٹ رہتے ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں. وہ مظفر نگر کے علماء نے ابھی یہاں کا مدرسہ کھولا ہے دیوبندیوں نے، جی ہماری گجر بستی میں ابھی نیا مدرسہ کھولا انہوں نے. اچھا انہوں نے میرا نام سنایا گجر بستی میں آ کر کے اس طرح کا شبی لڑکا ہے وہ ریزیو ہو گیا. اچھا اچھا
वो लोग मुझसे मुलाकात करने की वो रखते हैं, हाँ कि उससे मुलाकात करेंगे। तो मैंने एक दिन मुझे देख लिया रास्ते में, अच्छा तो तुम भी हो जो भी दिवंती से वो बेल में बने हो। मैंने हाँ मैं हूँ। हाँ कहने लगे क्या बात है? मैंने कहा ये मामला था। जी कहने लगा तुम आलिम हो? मैंने कहा आलिम नहीं हूँ, मैं तो जाहिल हूँ। हाँ मैंने उनसे बोला तो कहने लगा यार तुमने फिर इतना बड़ा फैसला किस तरह कर लिया? अच्छा मैंने कहा मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। मैंने उनसे सवाल किए कुछ। अच्छा सवाल करने वाले मैंने सवाल किया तो कहा तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। जी तो तुमने ये बात बताई क्यों ना हमारे देवबंद उलमा ने? मैंने नहीं बताई, किताब बंद करवा दी मुझसे। हाँ तो कहा यार इसके बाद हम कुछ कोशिश करेंगे, कोशिश में भी बताओ। जी और तो बस आज तक बताया नहीं, अपने अलग हो गए। जी तो मैं तो यार रात दिन में रहता हूँ लोगों में, मेरे पास मैं खुद जाता हूँ, मैं बुलाते हैं मैं खुद चले जाता हूँ, लेकिन बिल्कुल कोई बात नहीं है। हाँ अब इनकी शादियाँ होती, ब्याह होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मेरा इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं घर में बैठा हूँ आराम से। जी हाँ मैंने कहा अल्लाह अल्लाह जाने उसके रसूल जाने। बहुत अच्छा लगा हजरत सुन के आपकी बात को। और बढ़िया ठीक है और तो दुआ करना बहुत है। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। और बहुत मेरा दिल खुश हुआ, बाग बाग हो गया। हाँ अब सुनिए वो ऑडियो जो उस किताब में वो जुमला लिखा हुआ है। तो ये हमारे सफीक भाई देवेंदी आलिम से पूछा तो ये क्या बताया, आप सुने। हक ताला शानहू ये जानते, मतलब ये जुमला है इस तरह का। तो अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है भाई। जी तो जी ये जी जुमला तो अल्लाह के बारे में इस्तेमाल करना सही नहीं है। जी 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 अगर अल्लाह ताला ये जानते जी जी तो अल्लाह को तो आज का भी मालूम है, पिछले हजारों साल के वाक़यात भी अल्लाह को मालूम है, और आने वाले भी अल्लाह सारे हालात अल्लाह को मालूम है। जी 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 और अल्लाह के बारे में ये कहना कि अगर अल्लाह ताला ये जानते तो ये जुमला सही नहीं है ना। जी 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 सही नहीं है। हाँ सही नहीं है जुमला इस्तेमाल करना अल्लाह के बारे में इस तरह का। और जी दूसरा जुमला इसी के बाद दूसरा जुमला एक और है कि अगर अल्लाह जल्ला शानो के इल्म में ये बात होती, मतलब दोनों जुमले एक ही है। हाँ ये दोनों एक ही बात है, लेकिन ये सही नहीं है ना जुमला इस्तेमाल करना अल्लाह के लिए। जी 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 ठीक है जरा ठीक है। सलाम अलैकुम।